Hello students, so today we are going to discuss the exercise 5.2. Okay, so just I am going to solve question number 1. Okay, exercise 5.2. So first of all, please see question number 5.2. Question number 1. Question number 1 is if a is already given here, a equals to 7, okay, and d equals to 3, okay, d equals to what? 3, and n equals to 8, then you will have to find an. As you know that the formula of an equals to a plus n minus 1 into d, so you should put the value. Okay, the value of a is 7 and the value of n is what? 8 minus 1 into d equals to what? 3. So we can write here 7 plus 8 minus 1 means what? 7 into 3. So we can write here 7 plus 21 means 28. Okay, so that is the answer. Okay, 28. Question number 2. Question number 2, you can see a equals to minus 18. A equals to minus 18 and n equals to 10. N equals to 10 and an equals to 0. You need to find here what is the value of d, common difference. Okay, so you should put the value of given data in this formula. So you can see an equals to 0, so you can write here a equals to 0, a that is the minus 18 and n is 10, this is the 10 minus 1 into what? D. So minus 18 will be shift in LHS, it will become 18 and here is 19d. So d equals to what? D equals to 2. So question number third, that is question number third. In question number third, d equals to minus 3, is given, and n equals to 18, and an equals to minus 5. This is the question you need to find here. Okay, what is the value of a? Okay, so you can see this is the formula of arithmetic NS terms. Okay, so an equals to what? Minus 5, and here a equals to what? A equals to, we need to find here, and n equals to what? 8, n equals to 18 minus 1, and d equals to what? Minus 3. So we can put here minus a, or here is a plus 18 minus 1, 17 3 is a 51, so 50 minus 51, so we can write here minus 5 plus 51, so we can write here a equals to 46. Okay, this is the question number third, and now we are going to solve question number 4. And in question number 4, a equals to minus 18.9 here, a equals to minus 18.9, and d equals to 2.5, 2 equals to 2.5, and n is also 36. So now you need to find here what a, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25 से इसको अगर कटाएंगे, ये कितना टाइम पे कटेगा? 9 टाइम कटेगा. यस, 9 टाइम में कटेगा, तो ये आपका ये 9 आ जाएगा, और 9 प्लस 1 हो जाएगा, कितना होगा? n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गया. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप. नेक्स्ट क्वेश्चन में ए का वैल्यू जो है दिया हुआ 3.5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है ए इक्वल्स टू क्या है? 3.5 है. ठीक है, 3.5, यानी डी इक्वल्स टू 0, है, और उसके बाद जो है एन इक्वल्स टू 105 है. ठीक है, एन इक्वल्स टू 105 है. आपको निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है? यहाँ से सॉरी ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन का आपको निकालना है, एन का वैल्यू. तो आप एन का देखें, एन इक्वल्स टू क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा? डी. तो यहाँ से ए का इक्वल्स टू क्या होगा? 3.5 प्लस एन का वैल्यू क्या होगा? वो एन का वैल्यू आपका दिया 105 माइनस 1 इंटू डी. डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू जो है वो है 0. 0 इंटू समथिंग क्या होगा? 0 होगा, यानी 3.5. नंबर 2 देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 2 में एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का. आप इस क्वेश्चन को देखें, लिखा हुआ 30 टर्म्स था. इफ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है ये. आपका लिखा हुआ है 30 टर्म ऑफ AP. ठीक है, 30 टर्म ऑफ AP में आपका दिया हुआ है क्या? 10, 7, 4 दैट इज ईच. आपको यहाँ पे देखना है. ठीक है, कि क्या होगा इसका 30 टर्म. तो आप देखें यहाँ पे ए इक्वल्स टू कितना होगा? 10 है. डी इक्वल्स टू पता होगा आपका 7 माइनस 10,
इक्वल्स टू -3 होगा। ए एन इक्वल्स टू क्या होगा आप देखें, ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ए का वैल्यू कितना है 10 है और एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू जो है 30 है, ठीक है 30 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है -3। तो ये होगा 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 10 इंटू 10 माइनस 87, तो ये होगा -77। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में लिखा हुआ है कि 11 टर्म ऑफ द एपी, 11 टर्म आपको निकालना है। 11 टर्म क्या होगा इसका, 11 टर्म ऑफ एन एपी, 11 टर्म ऑफ एन एपी जो होगा वो क्या है आपका -3 1/2 माइनस जो है 3 है, फिर -1/2 है, -3 है, -1/2 है, उसके बाद जो है 2 है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे इसका क्या होगा। तो सबसे पहले ए इक्वल्स टू क्या होगा -3, डी इक्वल्स टू क्या होगा -1/2 प्लस 3 2 जा 6 में बन जाएगा 5/2 होगा और एन इक्वल्स टू क्या होगा 11 होगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा आपका उसका वैल्यू पुट करेंगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ए इक्वल्स टू -3 और 11 माइनस 1 डी का वैल्यू कितना होगा 5/2। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा आपका 10 इंटू 5/2, 2 से 5 टाइम कट जाएगा तो ये आपका -3 प्लस 25, तो ये आपका 22 होगा। ये क्वेश्चन आप देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है आपका 2 और फिर आपका एक पास बॉक्स है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से बना लें आप, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है इक्वल्स टू 2, आपको सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म भी दिया हुआ है a3 इक्वल्स टू कितना 26। तो पता होगा ए थर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा इक्वल्स टू 26। तो ए प्लस क्या होगा 2d इक्वल्स टू 26, ए का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आपका 2d इक्वल्स टू 26 होगा। सो 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2 मतलब 24 होगा। सो d इक्वल्स टू 24/2 मीन्स क्या होगा 12 होगा, ठीक है। अब d का वैल्यू निकल जाए, हमको a2 निकालना है, a2 इक्वल्स टू पता होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो मतलब a प्लस एन की जगह में 2 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ पे a प्लस क्या होगा d और a का वैल्यू कितना है 2 और d का है 12, तो कितना आ गया ये 24। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका बॉक्स दिया हुआ है, फिर ये बॉक्स है, फिर ये आपका 13 है, फिर बॉक्स है, फिर क्या दिया हुआ है लास्ट में 3 दिया हुआ है। दोनों बॉक्स में क्या भराएगा आप देखें यहाँ पे। तो पहला तो यहाँ पे ये देखें ये कौन सा टर्म है, ये आपका पता होगा ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये क्या a4 है। a2 का वैल्यू कितना है आप देख लें, a2 प्लस 2 13 है, 13 है, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या होगा 13। सो a प्लस डी इक्वल्स टू क्या हो गया 13 हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट में देखिए आप a4 इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो a प्लस क्या होगा 4 माइनस 1 मतलब क्या होगा 3d इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर क्या है 2। दोनों को घटा दें आप, अगर a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या है 3 और a प्लस डी इक्वल्स टू क्या है 13, आप इसको a प्लस 3d 13 है, ये आपका 3 है। अगर इसको आप घटाएंगे तो ये आपका 2d होगा, 2d इक्वल्स टू कितना होगा 13 में 3 जगह कितना होगा 10। सो d इक्वल्स टू कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा 5। और d का वैल्यू आप पुट करेंगे कोई क्वेश्चन थे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस डी इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है आपके पास, तो d इक्वल्स टू निकल गया आपका 5 निकल गया है, तो ये आपका 13। सो a इक्वल्स टू क्या होगा 13 माइनस 5 मतलब क्या होगा 8। तो a1 का वैल्यू निकल गया 8। अब आपको निकालना a3, तो a3 के लिए इक्वल्स टू पता होगा a प्लस क्या होगा 2d होगा, a का वैल्यू मतलब a1 8 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आपका 8 प्लस क्या होगा 10 होगा, तो कितना होगा 10 प्लस 8 क्या होगा 18 होगा। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। सारा क्वेश्चन आप इसी टाइप में दिया हुआ है, आप बॉक्स नंबर 4 में लिखा विच ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी, विच ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी क्या दिया हुआ है 3 8 13 18, ठीक है 18, ये 78 ये दिया हुआ है। तो आप ये देखें सबसे पहले a का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 3 है, d इक्वल्स टू क्या है 8 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है 5 है, और ये आपका a n का वैल्यू दिया, a n इक्वल्स टू क्या है 78। तो आपको फॉर्मूला पुट करें a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या होगा 78, a का वैल्यू क्या होगा 3 और n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 मतलब निकालना है n का वैल्यू और d का वैल्यू कितना है 5 है।
तो ये रहा 78, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 78 माइनस 3 मीन 75। अब यहाँ से n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आ जाएगा कितना 15 आ जाएगा, और n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस 1 दैट इज द 16। ये क्वेश्चन नंबर 4 का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको ये इसी तरह करके क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 5 नंबर, वो हम आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है। 5 का 1 पहले आपको हम समझा देते हैं। ये क्वेश्चन है 7, 13, 19 अप टू 205, ये क्वेश्चन आपका डाला हुआ है, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप, ए इक्वल्स टू क्या है, आप 7 है, ए इक्वल्स टू 7 है, डी इक्वल्स टू क्या होगा 13 माइनस 7 मतलब क्या होगा 6 हो जाएगा, और ए एन इक्वल्स टू दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला पुट करें आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 205। सो ए का वैल्यू आपका यहाँ पे 7 है, और एन माइनस 1 का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू कितना है निकालना है, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 6 है, इक्वल्स टू 205 है। तो यहाँ से जो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या होगा 205 माइनस 7, तो 198 होगा, और 198 को हम लोग 6 से कटाएंगे तो पता होगा कितना बार में कटेगी, 6 3 18, 6 3 18। सो n इक्वल्स टू क्या होगा 33 प्लस 1 दैट इज द 34। ये आपका क्वेश्चन है का आंसर आ गया। 5 का 2 देखें, 5 का 2 में क्या है आपका, 5 का 2 में 18 15 होल 1/2 ये दिया हुआ 18 15 होल 1/2, और नेक्स्ट में दिया हुआ है 13, और लास्ट में इसका दिया 47। तो आप सबसे पहले तो यहाँ देखिए ए इक्वल्स टू कितना होगा 18 होगा, डी इक्वल्स टू क्या होगा 15 टू जा 30 1/2 माइनस 18 घटाएंगे तो 18 टू जा 36, 36 में 31 घटाएंगे तो कितना होगा -5/2, ठीक है, -5/2 आ गया। अब यहाँ पे ए एन इक्वल्स टू दिया होगा 47, यहाँ से वैल्यू पुट करें आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 47। सो ए का वैल्यू कितना है 18 है, और एन माइनस 1 का वैल्यू एन का वैल्यू निकालना है, और डी का वैल्यू कितना है -5/2 इक्वल्स टू 47। सो यहाँ से जो निकलेगा 18 को उधर घटाएंगे तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल्स टू क्या होगा क्या होगा 47 माइनस 18 जो होगा वो क्या होगा 20, ये आपका कितने निकल जाएगा, ये आपका 29 निकल जाएगा, ठीक है। अब ये 29 निकल जाएगा आपका, तो यहाँ से 18 टू ज़ा 36 में 31 जाएगा तो -5/2। ए एन इक्वल्स टू दिया हुआ है, ए एन इक्वल्स टू -47 दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे -47 है, तो यहाँ पे -47 इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 7 15 4 1 5 1 6 तो -65 होगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे, 5 से कटेगा कितना टाइम में 13 टाइम में, तो ये आपका क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 13 टू जा 26। सो n इक्वल्स टू होगा 26 प्लस 1 इक्वल्स टू 27। तो ये इसका आप आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आज हम एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट क्लास पे जो है आपको 5 के बाद आपको हम क्वेश्चन बताएंगे टोटल आपका, ठीक है, 5 के बाद। ओके, थैंक यू।